चट्टान है। आज हम प्रार्थना करते कि तू हमारे बीच में आ परमेश्वर। Today we pray that you come in midst of us, Father. We love you, Lord. We thank you for you. Your word says where 2 or 3 people are gathered in my name, I'm there in the midst of them. We thank you for bearing all our burdens, Lord. हमारे सारे बोझ को उठा लेने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। You are our everything, Lord. You are beginning and the end, Father. शुरुआत और अंत है खुदा। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिताजी। तेरे सिवाय कोई भी नहीं परमेश्वर। There is no one else without you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. You are the center of everything, Father. तू हर एक चीज का मुख्य है खुदा। Thank you, Father. You are the center of our life. You are the center of our church. हमारे कलीसिया हमारे जीवन का तू ही सब कुछ है खुदा, मुख्य है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं खुदा। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this
the center of it all. Oh Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue confess you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Oh Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Oh Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Oh Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It'll always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. My Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh Jesus, you at the center of it all. Oh Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Oh Jesus, you at the center of it all. Jesus, you at the center of it all. Thank you, Father. You are the center of everything, Father. You are the center of everything, Lord. You are the center of our life. You are the center of this church. You are everything, Father, from beginning to the end. It's only you, Lord. Thank you, Father. You lead and we will follow, Lord. तू हमारी अगुवाई कर हम तेरे पीछे We thank you, Father. धन्यवाद करते हैं खुदा We thank you for all your plans for us are to prosper and not perish, Lord. धन्यवाद करते हैं जो जरूर सफल होंगे कभी ना We thank you, Father. धन्यवाद करते हैं खुदावन We thank you for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद We give you all the glory, all the honor, all the praise, Father. We give you
Accept it as a pleasing स्वीकार sacrifice. कर अपने बातों में। Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. The Lord will perfect that which concerns me. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा और सब कुछ परफेक्ट करेगा जो मेरे से जुड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हमारी ओर कान लगाता है और जो उसके सामने नम्र होते हैं परमेश्वर उन पे दृष्टि करता है। अगर परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो हमें और किसकी दृष्टि की ज़रूरत ही नहीं है और किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वो बहुत अच्छा खुदा है, क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें। जिस किसी के जीवन में परमेश्वर ने गवाही रखी है, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। मला पोट खराब झालं, 2-3 दिवस मला लूज मोशन होत होते, पोट दुखत राहिलं. मी प्रभूला प्रार्थना केली, अजून माझं पोट दुखायचं आणि लूज मोशन व्हायचं बंद झालं. म्हणून प्रभूला धन्यवाद करतो. माझं हिस्ट्रीचा आजकाल मोठे मोठे आन्सर येतात, तर ते मला जमत नाही. मी प्रभूला प्रार्थना केली, ते मला सगळे आले. म्हणजे 7 आन्सर होते, ते 7 मधले 7 आले. मैं प्रभु का धन्यवाद करते हूँ. प्रभु की स्तुति करते हम ग्रंथ के लिए, उसके विश्वास के लिए। परमेश्वर ने उसे चंगा किया और वो अपने बच्चे को कभी भी छोड़ता नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ग्रंथ के लिए, उसकी मम्मी के लिए। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। I just want to give a testimony about my mother that since a few months she was not keeping well. She was getting pain in her stomach, heaviness in her stomach, and it used to come and go, and we used to always pray that Lord, that nothing is wrong with him, nothing is wrong with her, because we knew that she's covered by the blood of Jesus, and Jesus had given us a lot of words. Even pastor and his wife had prayed and had given us promises and words, but mummy's state was getting worse. She started getting pain, so we had visited the doctor for a sonography. Mummy will also give the entire testimony in detail, and the doctor said that we'll have to go and conduct a CT scan because there was a lesion which was found, which we never knew if it was cancer or it was not cancer. And I had called my pastor at that time and told him that doctors are in doubt that whether it would be cancer or no. And at that point of time, when we came to know that we have to go for a CT scan, it was like our entire world changed upside down. And in our hearts, we were just crying out to God that He comes through for us, because He's always come through for us in every situation. But I was a little nervous and I was a little scared because it's my mother. She is everything to me. And we prayed, we went for the CT scan, but God was so good that He changed the entire situation for us. So I just want to thank Jesus and say that He is an awesome God. He's a wonderful God. As long as you walk in His ways and do things pleasing to Him, He will take you through every situation, and He will always make Satan a liar and His word the truth. So I just want to thank Jesus for doing such a big miracle, not only for me but for my entire family, and I thank Jesus for it. Though the Lord is on high, yet He regards the lowly. यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। प्रभु बहुत अच्छा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक का उनका जो विश्वास करते हैं उसमें, है ना। प्रभु बहुत अच्छा है, बच्चों की प्रार्थना को सुनता है और उसके अनुसार वो उत्तर भी देता है। और आज ही हमने सुना, जब हम प्रार्थना करते हैं, He answers on that day only. Praise the Lord. शायद हमें लगता है कि नहीं, मुझ में दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा खुदा है।
वो अद्भुत परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं या दुश्मन के चाल को नाकामयाब कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर के लिए, शिनेला के विश्वास के लिए, बच्चों के विश्वास के लिए, माँ के विश्वास के लिए और हर एक जिसने प्रार्थना की उनके विश्वास के लिए। प्रभु बहुत अच्छा है। वो हमारे बोलते ना, हम बोल भी नहीं सकते ऐसे शब्दों को वो सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमारे बीच में सुरक्षित हमारी बहन को लाया, हमारी सिस्टर को। प्रभु बहुत अच्छा है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभू येशूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. पुष्कळ म्हणजे मी 15 दिवसापासून मी पुष्कळ डिस्टर्ब होते वगैरे आणि खूप म्हणजे हे होतं मला. पण जेव्हा जेव्हा मी अश्रू ढाळायचे तेव्हा तेव्हा प्रभू येशूचं वचन मला भेट द्यायचं आणि मला ते सहाय्य करायचं आणि भिवू नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि अशा वचनांनी प्रभू येशूने माझी भेट घेत गेला आणि मी जेव्हा जेव्हा म्हणजे अश्रू ढाळले आणि तेव्हा तेव्हा मी प्रभू येशूला बोलले की प्रभू येशू माझ्या कष्टापेक्षा तू मोठा देव आहेस म्हटलं. आणि नक्कीच तू या सर्व गोष्टीतून माझं जे काही डिस्टर्बन्स आहे ते काढून मला तू सक्सेस देणार आहे, माझा पूर्ण विश्वास आहे. मी इथपर्यंत आले तुझा हात धरूनच मी आलेले आहे इतके वर्ष आणि तू नक्कीच मला सहाय्य करणार आहे. आणि प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद देते. त्यांनी जी शांती माझ्यासाठी ठेवलेली, ती शांती, ते प्रेम त्यांनी मला पुन्हा एकदा आगापे प्रीती त्यांनी मला दिली. त्याबद्दल त्या प्रभू येशूच्या नावाला मी कोटी कोटी धन्यवाद देते. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बहुत अच्छा है। और आज ही हमने पढ़ा, द लॉर्ड विल परफेक्ट दैट विच कंसर्न्स मी। परमेश्वर जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है उस सब को परिपूर्ण करेगा। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। जब हम उसे पुकारते हैं वो कभी हमें अनसुना नहीं करता, वो हमारी सुनता है, कान लगा कर सुनता है। वो ऐसा खुदा है जो कभी सोता नहीं, कभी झपकी नहीं लेता, पर कान लगाकर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो बहुत अच्छा है। और परमेश्वर आपको आशीष दे सिस्टर। और जो कुछ आपके साथ जुड़ा है हर एक बात को वो परिपूर्ण करने वाला खुदा है और सब कुछ वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और किसी के जीवन में गवाही है। देवाच्या नावाला धन्यवाद देते की माझी गावाहून आल्यापासून अशी एकदम तब्येत खराब होती. सारखी शुगर एवढी वाढलेली की एकदमच शुगर जास्त वाढलेली. तर मी गावी तिकडंच एकदम बोलले तुमची खूप तब्येत खराब झाली, सगळे विचारायला लागले. तर मी शुगर चेक केली तर खूप 445 पर्यंत शुगर. आणि जशी चेक 2-3 वेळा चेक केली ती सारखी 300-400 पर्यंत शुगर राहायची. आणि पुन्हा मग त्याने ते डॉक्टरकडे गेली तर डॉक्टर बोलले एवढी शुगर तुमच्यासाठी चांगली नाहीये. तर मी घरी आले तर म्हणले तुम्हाला खाली म्हणजे जेवण्याच्या अगोदर आणि जेवल्यानंतर शुगर टेस्ट करायला लागेल. तेव्हा मी गेली जायच्या अगोदर म्हणजे आल्यापासून प्रार्थनेमध्ये होते आणि जायच्या वेळेस पण प्रार्थना करूनच गेली की देवा मी आता सगळं तुझ्यावरती सोडले, माझी शुगर म्हणजे लेवल मध्ये येऊ दे अशी प्रार्थना करूनच गेली. तो नंतर फर्स्ट टाइम केली चेक तर त्यावेळेस किती 138 जेवणाच्या अगोदर आणि जेवल्याच्या नंतर 170. त्या ठिकाणी मी गेले, रिपोर्ट घेतला, तेव्हाच मी तिथं देवाला धन्यवाद दिला. ज्या वेळेस माझी शुगर 170 पर्यंत आली, कारण 445 शुगर होती. आणि 3-4 दिवसामध्ये त्यांनी शुगर तेवढी लेवलला आली की गोळी पण दिलेली, पण तेव्हा पण मी गोळी पण खात होते. माझा डोस कमीत कमी त्या डॉक्टरने 3 टाइम वाढवलेला, तरी पण शुगर ती तेवढीच राहायची. 2-3 वेळा चेक केली तरी ती 300-400 पर्यंतच राहायची. आता चेक केली, आता काल पण चेक केली, तेव्हा पण मी आल्यापासून प्रार्थनाच करत होती आणि काल पण प्रार्थनाच करून गेली. आणि तेव्हा पण आता कालच चेक केली तर 122 खाली पोट आणि जेवल्यानंतर 144. मी परमेश्वराला खूप म्हणजे असं धन्यवाद देते. आणि मदत अशी माझी तब्येत खराब झाली
की 4-5 दिवस सारखे मला लूज मोशन चालू होतं आणि एकेकीच माझा तो बीपी लो झाला आणि 1 दिवसासाठी दवाखान्यामध्ये ऍडमिट करण्यात आलं की बीपी एवढा हे बीपी वाढला नाही हे बीपी कमी झाला. एकदम मला असं उभा पण राहण्याची शक्ती नव्हती. देवाकडे प्रार्थना केली, देवाने ती पण माझी प्रार्थना ऐकली. देवाला मी धन्यवाद देते. आता सगळं व्यवस्थित आहे. देवाला मी धन्यवाद देते आणि बदलासाठी पण पोटामध्ये सारखी न काही खाता आग व्हायची, तेव्हा पण प्रार्थना केली. परमेश्वराने प्रार्थना ऐकली. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. प्रभु की स्तुति करते हैं हमारी बहन के लिए। प्रभु सच में बहुत अच्छा है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बनाया। हालेलुया। हमारी बहन को परमेश्वर ने चंगा किया, उसने कीमत चुकाई है। हम धन्यवाद करते हैं हमारी सिस्टर सुरेखा को परमेश्वर ने चंगाई दी। हम पूरा धन्यवाद करते हैं और हमारे भाई को भी चंगा रखा। प्रभु बहुत अच्छा है। हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। और कोई नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। आपका मम्मी नहीं, आपका पापा नहीं, आपका हस्बैंड नहीं, आपका वाइफ नहीं, आपके बच्चे नहीं, ना आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक ही ने लहू बहाया है और वो कोई बहा नहीं सकता। हालेलुया। और उसका लहू हमें जीवित रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दें। मेरा नाम विद्या है। मेरी बड़ी बहन, उसको बहुत तकलीफ हुआ था, मतलब उल्टी, पेट दुखना, एसिडिटी जैसा तकलीफ हुआ। पहले उसका ऑपरेशन हुआ था, मैंने टेस्टिंग दिया उसका पीछे। उसके बाद अभी 2 हफ्ते पहले उसको बहुत तकलीफ हुआ वापस। लास्ट संडे को उसको बहुत तकलीफ हुआ। फिर वो उसको सडनली इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। फिर इतना सीरियस हो गई थी कि वो नहीं क्या, उसका आग भी बंद हो गया, कुछ बोल रही नहीं, कुछ नहीं। पूरा आईसीयू में एडमिट किया उसका। फिर बाद में उसका स्कैन वगैरह किया, सोनोग्राफी किया। फिर उसमें उसको वो जो इंटेस्टाइन होता ना, उसको ये होल बोला था, दोनों इंटेस्टाइन को। उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हुआ, पेट में भी पूरा पानी हुआ था। प्रभु ने मेरी बहन को जान जाते जाते बचाया। प्रभु ने उसको बहुत बड़े ऑपरेशन से भी बाहर निकाला। ऑपरेशन भी हुआ उसका, अभी अच्छा है, वो डिस्चार्ज भी हुआ उनका। अभी घर पे स्टिचेस वगैरह निकाले। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बहन को उसने बचाया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं विद्या की बहन के लिए। प्रभु ने चंगा और भला रखे और उसकी करुणा में रखे। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में अच्छा है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम कितने भी कोने में पड़े क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी दृष्टि को हमसे हटाता नहीं है। वो बहुत अच्छा खुदा है। सच में वो हमें जीवन देता है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए जो सबसे महान है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दें। Sister, I want to give testimony like Shinala said about my wife. And like she said that she is the heart of the family. So when the heart of the family is affected, everybody is affected. But when this happened, my wife called me from there and she told me I have to go for a CT scan. I told her, go. I said, if this will not happen, how can we give testimony of what a good God we serve? I said, go, nothing is going to happen. This is just only a testimony for us. And God gave me 2 words. One is that the Israelites you will see no more. And the second one, He said, the same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that lives within us. So if the Holy Spirit lives within us, nothing can go wrong with us, because our body is controlled by the Holy Spirit. So I told her, go ahead, nothing is going to happen. And we really thank Jesus for all the prayers. We thank Jesus that He is really a good God and He never changes. He's the same God yesterday, today and forever. I just want to thank Him and give Him all the glory for all the miracles in our life. Amen. Praise the Lord. प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को रखा है कि वो हमारा मददगार बन के रहे। हालेलुया। अगर हमारा मददगार हमारे अंदर है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब असहाय एकदम
ऐसे लगता है ना खत्म हो गया, तब हमारा हेल्पर जो है वो हमें मदद करने के लिए आता है और वो हमें बांधता है और हमें तैयार करता है और हमें दुश्मनों के चाल से छुड़ाता है। Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hands against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Praise the Lord. प्रभु सच में बहुत अच्छा है और उसका हाथ हमें थामे रखता है और हमें दुश्मन के चाल में, उसके जाल में गिरने नहीं देता। ब्रदर के विश्वास के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, और सच में प्रभु बहुत अच्छा है, हमें फिर से तरोताज़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। I want to thank God. Already my husband and my daughter has said everything, but it's important that I testify because the word of God says that we overcome with the blood of the Lamb and the word of our testimony. In March, 4-5 days before I could come down from Indonesia, I was experiencing very bad pain on the right side of my stomach, and it went on for 3 days continuously. I was praying, and the only word God gave me was Isaiah 54:17, that no weapon formed against you shall prosper. So whenever I was not feeling well, I would claim that promise. And when I was coming down, I said, Lord, I have a 24-hour journey. I pray that you keep me safe without any pain. And from that time, I came down, there was no pain at all. Yes, there used to be a heaviness in my stomach, sick feeling, weak feeling, and every time God would confirm the word of Isaiah 54:17 that no weapon formed against you shall prosper. And I kept confessing that word over my body. On the 20th of May, when I was leaving to Pune at 5:30 in the morning, I got up and I was reading my Bible, and the Lord spoke a very specific word to me from Psalm 30 verse 11, that I have removed your sackcloth and I have clothed you with gladness. And that word touched me so much, and I was really rejoicing and happy. And I was praising God. I did not know that word was for the danger ahead that was going to come my way. And the Sunday before I could leave, when I came to church, Rekha said the same word, but she said it in Hindi. And I said, Rekha, which word you gave? She said, I spoke on Psalm 30 verse 11, that God has broken our sackcloth, removed it and clothed us with gladness. I said, thank you, Lord. I know you've confirmed your word. I don't need anything more. And 1 month later, I started getting very bad pain. I could not control. I used to message Pastor. He messaged me. He gave me the same word. Rekha's sister had seen visions. They were just helping me spiritually, which is most important than physically. My husband gave me the word of Exodus 15:26, that I will not put any sickness on you, for I am the Lord that heals you. With all the words, still the pain. The more I prayed, the more I confessed, the worse it became. And while I was at Shanella's place, she said, Mama, since I am going for a sonography, why don't you come? I said, no, I don't want to go. I just trust God. But the pain was becoming worse. My situation was not becoming less. I went to the lady doctor. She told me, go take your sonography and be happy. Have you taken a sonography before? I said, no, not in 17 years. The last I did was when I was pregnant for my 3rd baby. She said, okay, just go and take one. According to me, I don't feel anything is wrong with you. Then I called Pastor, he, Rekha and Oracle. We did a Zoom meeting, just him and his family and us. And when we had that Zoom meeting, Pastor said that he gave me 3 words he gave me, but one was, where there is unity, there is strength. And he said, God said, I'm setting everything right. And Rekha said, I've seen 1 drop of blood upon him. And again, Shanella spoke on Psalm 30:11. So there was one God, 1 word, 1 spirit. I knew I had to win this battle, but I did not know how and when. Next day, I went for my sonography. I prayed. God spoke to me from Hebrews 1:3 that He upholds us with the power of His word. And when the doctor was doing the sonography, he told the girl who was writing query. So I knew that there was some problem wrong. I said, now God, I do not know what is wrong with me. But I was holding on to the word of God. When I finished, he told me, he's saying, we found something. Everything is normal, but we found something on your liver. I have my doubts, so it's better you go have your CT scan done and confirm it and get it cleared. So I called my husband and I told him. He said, just send me the reports. I need to pray over it because the enemy is a liar. And we called Pastor. He prayed for us. Sister Rekha, I spoke to her. She said, don't worry, God does not lie. I said, yes. I don't know. I was not worried. I was just
God was just in control of the whole situation. Even the people who were doing the CT scan, who had to give me the dye in my hand, I don't know why I felt like I knew them. They were so good, so friendly. It was truly the presence of God was there. And I did not know what happened exactly. The doctor had spoken to Shanella. But when I came out, Clive was over there. He told me, he said, it's not cancer. I said, I don't know. You're telling me? He said, no, the doctor has confirmed it. And I was like, okay. And then I went out, I seen Shanella, she was crying, my husband was crying, Clive had tears in his eyes. Yeah, God is truly good. He truly comes true for all of us. He is not a liar. He is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. What he says he will do. And it's truly for us. No doctor, no medicine, nothing can work except his word. I just want to read one word which I had read the day that I was going for my sonography in the morning. I read Revelations chapter 19, verse 11, 12 and 13. And I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he does judge and makes war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no one knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Truly, he is all powerful. His word is all we need. And I am here today only because of him, because of his grace, because of his word. As long as we walk in his word, I am sure his word will prevail over our lives. So I just thank Jesus publicly, personally. He spared my life for his plan and purpose. And yes, he is true to every word. It's not only my victory, it's all of us that our God never lies. He is true to every promise of his, as his word says in 2 Corinthians 1:20, that all his promises are yes and amen. So I give God all the glory for saving my life and being true to his word forever. परमेश्वर का वचन एक ही है, हमारा प्रभु यीशु, जिसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। और सच में उसने हमारे दुख को नाच में बदला है, आनंद में बदला है। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है, और वो हमें शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता है। और सच में उसका हाथ छोटा नहीं पड़ गया कि वो हमें छुड़ा न सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु बहुत अच्छा है, वो सारी बातों को मिलकर हमारी भलाई के लिए करता है। और प्रभु ने उन्हें छंगा, बला और प्रूफ के साथ बीच में लाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी वह मुझे जरूर जिलाएगा। हालेलुया। मुझे मतलब हम सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कितना भी संकट में क्यों ना हूं, जैसे पतरस डूब रहा था, उसने सिर्फ हाथ दिया और यीशु ने उसे खींचकर बाहर निकाला, और वो फिर से पानी पर चलने लगा जिसमें वो डूब रहा था। हालेलुया। नाव तक वो कैसे गया? यीशु ने हाथ ऐसा बाहों में उठा के नहीं गया, उसको वापस चला के गया उसको, उसी लहरों के ऊपर, उसी पानी के ऊपर जिसमें वो डूब रहा था। प्रभु बहुत अच्छा है। वो गीत हम गाते हैं कि हम तूफानों में के ऊपर वो हमें ऐसा उड़ान बढ़ाएगा जैसे उकाब को उड़ान भराता है। हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, ऐसा लगता है कि हम डूब जाएंगे, ये तूफान हमें हिला देंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं पड़ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करती आज के लिए। मैं जब सुबह को उठी, मेरा आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और इनसे मैं बात कर रही थी तो जॉय हंस रहा था, रेखा क्या हो गया तेरे आवाज़ को? बिल्कुल आवाज़ नहीं चल रहा था, और ऐसा बहुत ऐसा हैवीनेस से मुझे आवाज़ निकालना पड़ रहा था। पर प्रभु का मैं धन्यवाद करती है जो मुझे चलाता है। उसके कोड़े खाने से
छंगे हो गए थे। उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए थे। उसके जैसा कोई भी नहीं है। आइए हम उस महान परमेश्वर का, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करें, जो हमें न कभी त्यागता है न कभी छोड़ता है। जब समुद्र ऊंचा उठता है और बिजलियां गरजना करती है, I will soar with you above the storm. मैं उस तूफानों के ऊपर तेरे साथ उड़ूंगा। Father, you are king over the flood. हे पिता, तू बाढ़ के ऊपर भी राजा है। I will be still and know that you are God. और मैं रुका रहूंगा और यही जानूंगा कि तू ही पिता है, तू ही परमेश्वर है। आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जब ऐसा लगता है कि समुद्र मेरे विरुद्ध आ रहा है, जब ऐसा लगता है कि बाढ़ आ रही है और बिजली ऐसी गरजना करती है जिसकी गरजना से परिस्थिति और बिगड़ जाती है, पर वो इतना विश्वसनीय खुदा है जो हमारा हाथ पकड़ के ऐसा ऊंचा उड़ाता है कि हम उन तूफानों के ऊपर उड़ना सीखते हैं। आइए हम हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो बहुत अच्छा खुदा है, वो ऐसा परमेश्वर है, अगर हम गिर गए फिर से हाथ पकड़ के उठाता है और उसी पानी पर वापस चलाता है जिससे हम डर गए, जिससे हम कांप उठे। वो ऐसा खुदा है जो उस पानी को, जो दुभागा कोई कर नहीं सकता, उसको हमारे लिए दीवार बनाकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा करता है। वो कितना अद्भुत प्रकटीकरण है जो उसने हमें दिया, कितना अद्भुत अभिवचन है जो हमारे लिए काफी है। वो वचन है, सच में वो वचन है जो हमारे लिए काफी है, और वो वचन हमें छुड़ाता है, वो हमें उद्धार देता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं। जिसकी आवाज से तूफान थम जाते हैं, जिसकी गरजना से बिजलियां डर जाती है, जिसकी गरजना से सिंहों के मुंह बंद हो जाते हैं, जिसकी गरजना से गुफा का, उस कब्र का पत्थर लुढ़क जाता है। तूने अपने मुख से आवाज किया, तूने अपने मुख से वचन को निकाला, तूने अपने मुख से आज्ञा दी और वो सृष्टि बन गई। तेरी गरजना काफी है हमारे लिए खुदा, तेरी गरजना से कब्र खुल जाती है, तेरी गरजना से मरे मुर्दे जीवित होते हैं खुदा, तेरे एक आवाज से हड्डियों में मांस आ जाता है, तेरे एक आवाज से परमेश्वर, तेरे एक आवाज से सड़ी हुई हड्डियां, मरे मुर्दे की हड्डियों में जान आती है। हम तो जीवित है खुदा, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू काफी है हमारे लिए। तू जब हमारे मुद्दे के लिए कर सकता है खुदा, तो हम जीवित लोगों के लिए क्यों नहीं करेगा? तूने मृतकों को जिलाया है परमेश्वर, तो अब जीवित में तू चंगाई को क्यों नहीं लेकर आएगा? तू कहता है कि मेरा हाथ क्या छोटा पड़ गया है, कि तू हमारे में
वो चंगाई को नहीं लेकर आए। आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए कीमत चुका दी है। अब हमें कोई कीमत नहीं देनी है, अभी हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी है, क्योंकि तूने हमारे हर जो हथियार हमारे विरुद्ध बना है, हर एक को तूने हर एक के तेज को निकाल दिया है। वो हम पर सफल हो ही नहीं सकते। वो हथियार कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारे विरुद्ध बोले हुए अपशब्द क्यों ना हो, हमारे विरुद्ध बोले हुए श्राप क्यों ना हो, हमारे विरुद्ध बोली हुई बीमारियां क्यों ना हो, हम पर हावी हो नहीं सकती। और तूने अभी वचन दिया है कि तू नम्र के ऊपर दृष्टि लगाता है। तेरी एक दृष्टि काफी है हमारे लिए, तेरी एक किरण हमारे लिए काफी है खुदा। इस दुनिया की किरण नहीं, पर हमें तेरी दृष्टि चाहिए परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं, सारी गवाहियों के लिए तेरे सामने झुकते हैं। तेरा हम कितना भी धन्यवाद करें वो थोड़ा है, फिर भी हम कर नहीं सकते, फिर भी हम अपने आराम के जगहों से उठ नहीं सकते, फिर भी हम तेरे मंदिर आ नहीं सकते। कितने अब्बा के लोग हैं जिनको मौका मिला पर वो तेरे मंदिर आ नहीं सकते। तेरे सारे बच्चों के लिए परमेश्वर, हर एक उनके लिए जिन्होंने गवाही दी, हर एक उनके लिए जो नहीं दे पाए, हम जानते हैं कि तूने हर एक में कार्य किया है। हमारी हर एक श्वास तेरा धन्यवाद देती है। हमारा उठना, हमारा बैठना तुझे धन्यवाद कहता है। हमारा मुंह खोलना, हमारे मुख से शब्द निकलना तेरा धन्यवाद है खुदा। हमें गूंगा बहरा नहीं रखा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे इन हाथों को तूने सूखा नहीं बनाया कि हम उठा नहीं सके। हम धन्यवाद करते हैं, तूने पैरों में बल दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सारी कमजोरी को तूने उस क्रूस पर चढ़ा दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारे सर से लेके पैरों तले हर चीज को नॉर्मल रखता है। जो असंभव है, जो कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता, हमारे हड्डियों में कर देता है। हमारे हर नसों में यीशु मसीह का लहू बहता है, जिसकी वजह से हम मृतकों में नहीं कहलाते। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदा। बहुत अच्छा खुदा है। हम सबों को हमें गंभीर बना खुदा, कि सच में हम गंभीर हो जाए और तेरा धन्यवाद दे सके। हमें और गंभीर बना परमेश्वर, कि हम इस गंभीर समय को जान सके। हमारी आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल खुदा, हमारे मन को तू बना परमेश्वर। इस भटकने वाले मन को तू एक सही मार्ग पे लेकर आ खुदा। हर चंचलता को निकाल परमेश्वर। हमें बहुत सारी अयोग्यताएं हैं, लेकिन हम जानते हैं तूने कहा है कि I will perfect everything concerning you, कि तेरे साथ जुड़ा हुआ हर चीज को मैं परिपूर्ण करूंगा। कितना अद्भुत अभी वचन है, तूने मेरी आवाज को परिपूर्ण किया। हम धन्यवाद करते हैं।
तूने इस कमजोर को इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। हम किसी योग्य नहीं, लेकिन फिर भी तूने माँ के घर में जाने से पहले नाम लेकर पुकारा। तूने हमें चाहा, तूने हमसे प्यार किया। हम तेरे सामने झुकते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरा धन्यवाद करते सारी गवाहियों के लिए, सारी चंगाइयों के लिए। तू बड़े और हम सब घटे खुदा, तेरी महिमा हो परमेश्वर। आज हम तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तू चला पाक आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू हमारी अगुवाई कर, हमें दृढ़ बना। हम बहुत ही कमजोर हैं, हमें हाथ पकड़ के चलना सिखा और लहरों के ऊपर हमें चलना सिखा। हम भी पतरस के नाई डगमगा जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमें मदद कर, हम पकड़े हैं लेकिन तू हमें और मजबूत पकड़ खुदा। शायद हमारी पकड़ कमजोर हो सकती है, लेकिन तेरी पकड़ कभी कमजोर नहीं होती खुदा। हमें थामे रख परमेश्वर। कि हम इस तूफानों में उड़कर तेरे साथ चल सके, उस मध्य आकाश तक पहुंच सके, हम तेरे पुत्र को आते हुए देख सके खुदा। हमें और मजबूती से पकड़ परमेश्वर। इस दुनिया के समुद्र में तो हमें चला खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का संपूर्ण समय तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन ले पिता। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He is awesome God. वो अद्भुत He परमेश्वर is है, wonderful God. वो बहुत ही अद्भुत खुदा है। Jesus be the center of my life. यीशु मेरे जीवन का मुख्य, Hallelujah. Nothing else. और कुछ भी नहीं। Today we worshipped Him with this song. और आज हमने इस गीत से उसकी आराधना की। Let us worship Him आइए हम उसकी आराधना करें always with this song. हमेशा इस गीत से। Jesus be the center of my life. यीशु मेरे जीवन का मुख्य है। As Psalm 115 and first verse says, जैसे भजन संहिता 115 उसका पहला वचन, not to us, O Lord, not to us, हमें नहीं प्रभु, हमें नहीं प्रभु, but to your name give glory. पर तेरे नाम की महिमा हो। For yours mercy, yours is the truth. क्योंकि तेरी दया है और तेरी ही सच्चाई Our है। God is wonderful God. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत खुदा है। He is having a great thoughts for us. उसके पास हमारे लिए अद्भुत विचार है, For each one of us. हम में से हर एक के लिए। Thoughts not to harm, विचार ना तो हानि के but to prosper. पर उन्नति के And to bring a good future. और अच्छा भविष्य लाने के लिए। You know what makes Israel different?
आपको मालूम है इज़राइल दूसरों से भिन्न क्यों है? Success of Israel is इज़राइल की उन्नति जो है because of the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति के कारण, And God's presence और परमेश्वर की उपस्थिति made them different from other nations. उन्हें दूसरे राष्ट्रों से भिन्न बनाती है। This is what the Lord's thought for us all. यही हम परमेश्वर का, प्रभु का विचार हम सबों के लिए है। As we are standing at the end time, जैसे ही हम इस अंत समय में खड़े हैं, God is expecting you to be His prophets, His ministers in this end time. परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसके नबी बनकर, भविष्यद्वक्ता बनकर इस अंत में खड़े रहें। Whose business? किसका ये काम है? व्यापार है, Pastor's business. पास्टर का काम है। Whose business? किसका ये काम है? Whose house? किसका घर है ये? If it is my house, अगर ये मेरा घर है then I will work. तो मैं काम करूँगा। And now there is no time. और अब समय ही नहीं है। God is having a great plans, परमेश्वर के पास बहुत बड़े विचार great है, thoughts, बहुत बड़े विचार, awesome thoughts अद्भुत विचार for each one of us. हम में से हर एक के लिए। God is expecting us all to grow. और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, हम सबों से, कि हम बढ़े। God is having awesome plans for you, आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं that you may grow in Him. कि आप उसमें और बढ़े। And our growth और हमारी बढ़ोतरी comes when we walk and fellowship with Him. तभी होती है जब उसके साथ हम सहभागिता करते हैं और उसके साथ चलते हैं। And our fellowship and walk with Him और उसके साथ सहभागिता और उसके साथ जो हमारा चलना है can only be possible if His presence is there. तभी ही संभव हो सकता है अगर उसकी उपस्थिति है तो। And His presence और उसकी उपस्थिति we can experience if He comes down. तभी ही हम अनुभव ले सकते हैं जब वो नीचे आता है। As we can see in Exodus, God came down. जैसे निर्गमन में हम अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर नीचे उतर आया। In Exodus 34, God came down. निर्गमन 34 में परमेश्वर नीचे आया। Came down to that mount. परमेश्वर उस पर्वत पर उतर आया। And He calls Moses up. और वो मूसा को ऊपर बुलाता है। He wants us all to be one with Him. और वो चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाए, Walking together into His presence. उसकी उपस्थिति में आगे बढ़े, Enter into His presence. उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। When we decide or when we think to enter into His presence, जब हम ये निर्णय लेते हैं उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, there are lot of levels. तो बहुत सारी लेवल होती है। In which level I am standing? मैं किस लेवल में खड़ा हूँ And what God is expecting from और me? परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता है? He is expecting a great things. वो बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहा He is है। having a great thoughts. उसके पास बहुत बड़े विचार है। If God Himself will not reveal to us, अगर परमेश्वर खुद होके हमारे सामने प्रकट न करे then it's impossible to know Him. तो उसे जानना असंभव है। Impossible to get attracted to His presence. असंभव है उसकी उपस्थिति में आकर्षित होना। It's impossible to know Him. ये असंभव है उसे जानना। For it is He who attracted us, क्योंकि ये वो है जिसने हमें आकर्षित किया, who enlightened our minds and hearts. जिसने हमारे मन को और हृदयों को ज्योतिर्मय It's बनाया। not by ourselves we have come. ये हमारी खुद की चाहत से हम नहीं आए। It's not that we pushed and something happened. और ऐसा नहीं कि हम अंदर आ गए और कुछ हो गया। We know from Exodus 3rd chapter.
हम जानते हैं निर्गमन 3 अध्याय से God appeared to Moses in that burning bush. कि परमेश्वर उस जलते हुए झाड़ियों में मूसा को दिखाई दिया। झाड़ियों में। वाह। It's God. ये परमेश्वर है। Why? क्यों? God appeared to Moses क्यों परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ? to change his level. उसकी लेवल को बदलने के लिए। Why God is knocking at our doors? परमेश्वर हमारे दरवाजे पे क्यों खटखटा रहा है? Why? क्यों? To change our level. हमारे लेवल को बदलने के लिए। Standing at the door. वो दरवाजे पे खटखटा रहा है। Knocks. वो खटखटा रहा है And he knocks और वो खटखटा रहा है that we may open कि हम खुला करें and we may experience the presence. और हम उसकी उपस्थिति का अनुभव लें We may enter into the highest level. और हम जो सबसे ऊंचा लेवल है वहां तक जाए। I must see, he said. उसने कहा मैं जरूर देखना चाहिए, I must go. मैं जरूर जाना चाहिए। What you must do. आपको जो करना चाहिए आप जरूर करें। You must go. आप जरूर जाइए। You must see. आप जरूर देखें। It will happen. वो होगा। You will experience God. आप परमेश्वर का अनुभव लेंगे। You must, that should come inside you. I must. वो आपके अंदर से होना चाहिए कि हाँ मुझे करना चाहिए। He appeared to everyone. वो हर एक के सामने प्रकट हुआ। I and my friend Clifford, we both were standing. मैं और मेरा दोस्त क्लिफर्ड दोनों खड़े थे And my friend Clifford said, और मेरे दोस्त क्लिफर्ड ने कहा, Joy, जॉय, I saw 7 people standing on a stage. मैंने देखा 7 लोग स्टेज पे खड़े हैं And that 7 is I, और 7 में से मैं हूँ, you, तू, Sudhir, बबलू, Dominic is gone now. डोमिनिक तो चला गया, मेलविन and one bhaiya. और एक भैया। No one is. Maybe. I heard it. मैंने सुना, And I started running. मैंने दौड़ चालू की। What you are doing? आप क्या करते हैं? What you are going to do? आप क्या करने वाले हैं? How you are going to be in that presence? आप उसकी उपस्थिति में कैसे होंगे? I must go. मैं जरूर जाना चाहिए, I must see. मैं जरूर देखना चाहिए। Bas, that much. Nothing else Moses did. और कुछ भी मूसा ने नहीं किया, Nothing else. और कुछ भी नहीं। I must go over. मैं जरूर ऊपर जाऊं। This is the end time, no? ये अंत समय आ It गया। because Bible says so. बाइबल ऐसा कहता है। They will put that on everyone. वो And they will हर एक put पे not that डालेंगे। time. उस समय नहीं डालेंगे, Now. अभी। You will stand आप खड़े होंगे or you will say nothing happens, man. या आप कहेंगे कुछ भी नहीं होगा। How you will stand? आप कैसे Are you there to believe that God will provide? क्या आप ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर देगा? Or how I will lose my job? मैं कैसे अपने नौकरी को खो दूं? That burning bush experience. वो जलती हुई झाड़ी का अनुभव When you will have from inside, I must go. जब आपके अंदर होगा कि I must see. मैं जरूर वहां जाऊं, जरूर मैं देखूं, He will take care of you. तो वो आपको संभालेगा। Not just 40 years in Egypt experience, सिर्फ 40 साल नहीं मिस्र देश के अनुभव में, but He will give you 40 plus 40 experiences. वो 40 प्लस 40 और अनुभव देगा। He is going to uphold you. वो आपको ऊंचा उठाएगा। He is going to carry you in His bosom. वो आपको अपने बाहों में लेकर It चलेगा। is awesome. ये अद्भुत है। First step, I must go over. पहला कदम ये है कि मुझे ऊपर जाना है। Peter, पतरस, come on.
ऊपर आ। 12 disciples were there. 12 शिष्य And थे। he said, I must go. उसने कहा मैं जरूर जाना Lord, if चाहिए। you are, call me. अगर तू है मुझे बुला, I must go. मैं जरूर जाना चाहिए। Peter walked on water. पतरस पानी पर चला। How faithful Jesus is. कितना विश्वसनीय यीशु है। He is faithful. Without his faithfulness, we can't. वो विश्वसनीय है, उसके विश्वसनीयता के कारण But हम the है। call is on you. पर बुलावट आपके लिए है। How you will respond. आप कैसे प्रतिक्रिया दिखाएंगे? Now is the time to be ministers of God. अब ये समय है प्रभु का सेवक बनने के Each लिए। one of us. हम में से हर एक, We need to be minister. हमें उसकी सेवकाई करनी है। हमें सेवक होना है। हमें सेवक होना है। The harvest is plenty. क्योंकि फसल बहुतायत से है And laborers are few. और मजदूर थोड़े हैं। Pray to God of harvest. फसल के परमेश्वर से प्रार्थना The करो। Lord of harvest. फसल का प्रभु Pray प्रार्थना that करो he may send laborers. कि वो मजदूरों को भेजे, But not me, Lord. पर मुझे नहीं प्रभु, Send someone else. किसी और को भेज। Why you are telling me to go and look after your vineyard? क्यों Send my elder brother. क्यों मुझे I will not go. कह रहा है कि खेत में जा, मेरे खेत में जा, और बड़े भाई को नहीं कह रहा है मैं नहीं I जाऊंगा। can't go. I don't have time. मैं नहीं जा सकता, मुझे समय नहीं है। And many have pushed in. और बहुत सारे अंदर चले गए, I will go. मैं जाऊंगा, But not working. पर काम नहीं कर रहे। Now God is knocking at your door. अब परमेश्वर आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। This knock, ये जो खटखटाना है, which I am knocking here, जो मैं यहाँ पे खटखटा रहा it's हूँ, not going to leave any of you. वो आपको किसी को नहीं छोड़ेगा, It will knock. वो खटखटाता रहेगा। Because Jesus is telling you. क्योंकि यीशु मसीह आपको बता रहा है, Standing at the door. वो दरवाजे पे खड़ा है। Ministry means सेवकाई sit मतलब at nice chair here. यहाँ पे अच्छे से बैठना। Let his daughter fix the camera. इसकी बेटी कैमरा लगाए, Start the Zoom. जूम चालू करे Give a bundle of words to thaka damad. और वचनों की बारिश, Revelations. प्रकटीकरण। Wow, what a revelation. कितना अच्छा प्रकटीकरण है। Paul says, पौलुस कहता है all will go, सब चला जाएगा, but only love. पर प्रेम। If you love Lord, अगर आप प्रभु से प्रेम करते you will हैं, be a minister. आप सेवक बनेंगे। Your life, आपका जीवन, your sitting, standing, thinking, आपका बैठना, उठना, सोचना, everything will be ministry. सब कुछ सेवकाई We करेगा। should be serious with ministry. हम सेवकाई के साथ बहुत ही गंभीर It's बनना a time to चाहिए। be serious. ये समय है गंभीर बनने के It's लिए। a time ये समय है to stand up. खड़ा होने के लिए। I must see. मैं जरूर देखना चाहिए। We need to reach to His presence. हमें उसकी उपस्थिति में पहुंचना है, And He will help us to climb levels after levels and levels after levels. वो हमें मदद करेगा एक लेवल से ऊपर आने के लिए। Someone said, किसी ने कहा Mount Sinai सिनाई पर्वत is very dangerous to climb. बहुत ही खतरनाक है चढ़ना उस पर। But when you hear the call, पर जब आप सुनेंगे उस बुलावट को, when you respond with all your mind and heart, जब आप पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ प्रति उत्तर देंगे, and the one who was against God from years and years and years, और वो जो परमेश्वर के विरुद्ध था सालों सालों से, not just from 7 years, 7 साल से नहीं, not just from 7,000 years. 7,000 साल से नहीं। I don't know how many years long he rebelled against God. मुझे नहीं मालूम कि कितने साल पहले उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। For Jeremiah says, क्योंकि इर्मया कहता है all the towns were broken सारे नगर टूट गए and the birds left their homes. और पक्षी अपने घर छोड़कर चले गए। If he is so much rebellious, अगर वो इतना
विरोधी है, cunning, गंदा है, wanted to take God's place. परमेश्वर की जगह लेना God's चाहता है, position. परमेश्वर का स्थान लेना चाहता Will है। he openly tell you that I will come and confess Jesus' name, or I will put this? क्या वो आसानी से आपको कहेगा कि यीशु मसीह का नाम कबूल करेगा तो या नहीं करेगा, ऐसा He is a good पूछेगा? evangelist or what? क्या वो अच्छा सुसमाचारक है क्या? That means everyone will come to know Jesus' name में कुछ तो है. हर एक जानेंगे कि यीशु के नाम में कुछ तो है। So what they will want to take, they will take. तो जो उन्हें लेना है वो लेंगे। Don't want to tell about that now. मैं उसके बारे में अभी नहीं बोलना I'm telling चाहता। you how we can escape this all. मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि हम इन सब से कैसे बच सकते हैं। Only when we climb to His presence, केवल तभी ही जब हम उसकी उपस्थिति में चढ़ेंगे, reach to His presence, उसकी उपस्थिति में पहुँचेंगे, go up to Him. उसके पास जाएंगे। We know that He said, "Take off your shoes." उसने कहा अपनी जूतियों को निकाल दे। You know what he saw? आपको मालूम है उसने क्या देखा? He saw burning bush उसने देखा जलती हुई झाड़ियाँ which is not consumed. जो भस्म नहीं हो गई। We will come back to this point again. हम इस पॉइंट पे फिर से आए Go up to His presence उसकी उपस्थिति में जाने के because लिए, He is having a great thoughts. क्योंकि उसके पास बहुत बड़े विचार हैं। Great thoughts are not that thoughts which you are thinking. वो विचार ऐसे नहीं है जो जो आप सोच रहे हो महान है. Something much higher, कुछ उससे बढ़कर much glorious. बहुत ही महिमावंत। First He is calling, पहले वो बुला रहा है then He is saying stop. और वो कहता है रुक जा। You know how many times God stopped him. आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कितनी बार Take off your उससे कहा, sandals. तेरे जूतियों को We निकाल। know that we got rid of our sin and everything. हम जानते हैं कि हम अपने पापों से छुटकारा पाए Got हैं। forgiveness. परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, We repented. हमने पश्चाताप किया, We built up relationship again. हमने फिर से उससे रिश्ता We बनाया, got restored. हम फिर से तरोताजा हो But He's गए। speaking about more deeper relationship. पर वो और गहराई से संबंध के बारे में कहता है, More deeper. और गहराई। Go into His presence. उसकी उपस्थिति में जाओ, Dedicate your lives. अपने जीवन को समर्पित करो, Dedicate completely to Him. पूरी तरह से समर्पित Go करो। and meditate Romans 12 chapter 1 and 2 verse. जाओ और रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय 1 और 2 मनन करो। What He is speaking for me. वो मेरे लिए क्या बोल रहा What है, is in His mind. उसके मन में क्या है। Do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चल। To be one with life, आपको जीवन के साथ एक होना है, with God. परमेश्वर के साथ। Do not conform any longer to the pattern of. Dedicate yourself. इस दुनिया के तौर तरीके में एक मत हो Don't जाओ, go into their समर्पित करो अपने pattern. आप को, उनके तौर तरीके में मत चलो। You should have God's pattern. आपको परमेश्वर का तरीका होना Then only you चाहिए। can say, Moon! Move not. तब भी आप कह सकते हैं, हे चंद्रमा तू खड़ा हो जा, Sun! सूर्य Stay. there. उधर ही रुक जा। His presence. उसकी उपस्थिति Very much needed. बहुत जरूरी है In this end time. इस अंत He समय said में। it, I will pour out of my spirit on all flesh. On flesh means who? उसने कहा कि मैं अपने आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, On all flesh. सबके His ऊपर। precious Holy Ghost. उसका पवित्र पाक पवित्र आत्मा On whom He is going to? किसके ऊपर वो उंडेलेगा? My dad. मेरा पापा। Even the last pie of his money. उसका पैसों का अंतिम पाई भी, His ring. उसकी अंगूठी, Nothing was in his pocket. कुछ भी उसके पॉकेट में नहीं I think था। after some months, कुछ महीनों के बाद Oracle brought her some paper, ओरेकल कुछ rounded up, पेपर, pouch. उसका पाउच लेके आई And in that paper, that all monies were there. और उसमें एक पेपर था, उसमें पूरा पैसा था। He never threw that money outside.
उसने वो पैसा बाहर नहीं फेंका। Why he kept it? Oracle Oracle के बैग में क्यों रखा? He want to pour his spirit on you, not on anyone else. परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेलना चाहता है, किसी और के ऊपर नहीं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You will be a different person. आप बिल्कुल अलग व्यक्ति बन He will जाएंगे। take you to the higher level, वो आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। amazing level. अद्भुत 12 disciples. 12 शिष्य, Only one walked on water. केवल एक ही पानी पर चला। Impossible for man to walk on water. एक मनुष्य के लिए ये असंभव है पानी पर चलना, But Peter walked on. पर पतरस पानी पर चला। The water which is going to drown you deep. It's Wow. going to come. It's going to flood on whole earth. वो पानी जो आपको नीचे निगल लेगा. निगल लेगा, डुबा देगा, It's going to पूरी come on पृथ्वी full. पर आ रहा है, But you are going to walk on the waters. पर आप उस पानी पर That चलोगे। is what Isaiah said. यही यशायाह ने कहा, Fire will not consume you. It can't consume. आग आपको निगल नहीं You are सकती। different because of the presence. आप अलग है क्योंकि उपस्थिति के कारण। Sacrifice. बलिदान, While you are on this walk, जब आप इस चरण में हैं, to be into His presence, उसकी उपस्थिति में रहने के you have to लिए sacrifice all friendship, everything. आपको हर दोस्ती को बलिदान Moses करना पड़ेगा। alone मूसा on the अकेला mount. You alone. पर गया, आप अकेले, You alone आप अकेले, have to stand strong. आपको मजबूत खड़ा होना है। You can't say, if not my husband is standing, how I can stand? ऐसा आप कह नहीं सकते, मेरा पति खड़ा नहीं हो रहा, मैं कैसा My खड़ा father हूँ? is not standing, how I will stand? मेरा पप्पा नहीं खड़ा हो He's सकता, मैं drunkard. कैसा खड़ा हूँ? वो तो पियक्कड़ है, He is speaking with you. वो आपसे बातें He's कर रहा है, calling you. वो आपको बुला रहा Don't look at है। your elder brothers. आपके बड़े भाइयों को Don't look at anyone. किसी की और मत Now देखो। you need to stand. अभी आपको खड़ा होना है The people may look at you कि लोग आपकी ओर देखे and you may be in the presence. और आप उसकी उपस्थिति में As रहे। Moses was in the glory, जैसे मूसा महिमा में था, God's glory was on him. परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर थी, Amazing glory. अद्भुत महिमा God is going to put in your life. परमेश्वर आपके जीवन में डालना चाहता है। Offer your bodies as a living, holy and acceptable to God. Your bodies. अपने शरीरों को पवित्र जीवित परमेश्वर को समर्पित करो, Give your life. अपने जीवन को समर्पित करो, Give yourself. अपने आप को दे दो। Will you read from 1 John 4th chapter 10th and 19th verse? पहला यौना 4 अध्याय 10 और 19 वचन जब हम पढ़ते You हैं, can see that love consists in this. कि प्रेम इसी में है, Not that we loved God, ऐसा नहीं कि हमने प्यार किया प्रभु से, but He loved us. पर उसने हमसे प्रेम किया, He sent His Son. उसने अपने बेटे को भेजा। He descended. Bible says in 34th Exodus 34 that God descended. निर्गमन 34 में बाइबल कहता है कि परमेश्वर उतर आया। You can't go. आप नहीं जा You may सकते, climb any mountain, आप कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं, but can't go into God's presence. पर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा If सकते। He comes down, अगर वो नीचे उतर आया there is a miracle. तो वहाँ पे चमत्कार है। You and God, God and you, you and आप God, और God and you. परमेश्वर, परमेश्वर और आप I don't और know how to परमेश्वर। explain you. मुझे नहीं मालूम मैं आपको कैसे समझाऊं। If I say amazing relationship, अद्भुत संबंध, God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है, Come, आओ। Peter, come. पतरस तू आ, Moses, come up here. मूसा तू ऊपर आ। If you hear this call, अगर आप इस बुलावट को सुनते हैं you need to go up to that level. तो आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। Who will go? कौन जाएगा? Who will stand? कौन खड़ा होगा? You will go. आप जाएंगे, You will stand. आप खड़े होंगे, You will go up to that mountain. आप उस पहाड़ तक Because जाएंगे, it's He who first loved you. क्योंकि ये वो है जिसने पहले आपसे प्रेम किया। He sent His Son to be as atoning sacrifice for Oh. yourself.
उसने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को आपके प्रायश्चित के लिए दे दिया। That means you don't have any difficulty right now. इसका मतलब है अब आपको कोई भी कठिनाई You have नहीं an है। easy way to go up. आपको बहुत आसान तरीका है ऊपर जाने के लिए। God said, don't come closer to here. Remove your sandals. परमेश्वर ने कहा नजदीक मत आ, अपनी जूतियों को वहीं उतार Do the things which you need to do. और वो सब चीजों को करो जो करना चाहिए। Get rid of the things which you need to get rid of. आप जो चीजों से छुटकारा पाना चाहते पाइए। If you read Exodus 34, अगर आप निर्गमन 34 पढ़ते हैं, there it is written, Moses, prepare yourself. वहाँ पर लिखा है मूसा तो अपने आप को तैयार कर। There needs preparation to go up to his presence. वहाँ पे तैयारी लगती है उसके उपस्थिति में जाने In 1 के लिए। Corinthians 11 chapter 28 verse, he says, examine yourself. पहला कुरिन्थियों का पत्र 11 अध्याय 28वां वचन कहता है कि अपने आप को जांचो। 31st verse says, 31 वचन कहता now है if you judge yourself properly, अगर अपने आप को आपका न्याय करो सही तरीके से, you can experience his presence. आप उसकी उपस्थिति का अनुभव कर God सकते हैं। wants us to be in his presence. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में रहें। No other sacrifice is needed that we may go up to his presence. और कोई बलिदान की जरूरत नहीं उसके उपस्थिति में I जाने के fasted, लिए। I fasted. मैंने उपवास किया। Moses उपवास fasted. किया। I tell you, it's awesome. मैं आपसे कहता हूँ ये अद्भुत है। It's good if people are saying he fasted, it's good. But I am telling you, it's awesome to be in his presence. अगर उसने उपवास किया अच्छा है, पर मैं आपसे कहता हूँ प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही अद्भुत है। भूख नहीं लगता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, फिर भी खाते रहते हैं। Food of angels. स्वर्गदूतों का खाना, Table prepared for us. मेज जो हमारे लिए उसने बिछाई है। More than what we can think or what we can ponder, he is going to give. हमारे सोच विचार के परे जो हम सोच नहीं सकते उसने किया He is है। more than my father. वो मेरे पिता से बढ़कर है। More than anyone in this world. इस दुनिया में हर एक से बढ़कर। Awesome God. Wonderful अद्भुत God. परमेश्वर। No other sacrifice. और कोई बलिदान नहीं, Just go with your own bodies. केवल अपने शरीर के साथ उसके पास जाओ। What you can't do, जो आप नहीं कर सकते he will do. वो करेगा। Only you need to go there. सिर्फ आपको वहाँ जाना है, Seek his presence. उसकी उपस्थिति को खोजना है। Abraham sought his presence. अब्राहम ने उसकी उपस्थिति को Come up खोजा। there. वहाँ पर आ, And his son is saying, Father, और उसका बेटा कहता है पिताजी we have sticks. हमारे पास लकड़ियां हैं। In Genesis 28, we have everything. उत्पत्ति 22:8 हमारे पास सब कुछ है। Fire. आग है, Where is the lamb? पर मेमना कहाँ है? Don't worry. चिंता मत करो, What you should not worry. जिसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है Worry for his presence. उसकी उपस्थिति की चिंता करो। बस I want Father. मुझे पिता चाहिए Nothing else. और कुछ भी नहीं। I want Daddy. मुझे पिताजी चाहिए Nothing else. और कुछ भी नहीं। This is a spiritual service. ये जो है आत्मिक सेवकाई है। Offering our own bodies. हमारे खुद के शरीरों को अर्पण करना, It's not a fasting. हमारा उपवास नहीं, And none of other ones. हमारे और कोई काम In नहीं। Micah 6:8 he says, मीका 6:8 में वो कहता है He has shown you, O man, उसने आपको दिखाया है ये मनुष्य what is good. कि क्या अच्छा है। Wow, His presence is good. उसकी उपस्थिति अच्छी His है, love is awesome. उसका प्रेम अद्भुत है, He is awesome. वो अद्भुत है। Oh, take the whole world, we sing. ओ हम गाते हैं पूरी दुनिया ले ले, But give me Jesus. पर मुझे यीशु दे दे। It's not just a song. ये सिर्फ गीत नहीं है, It's a life, what God is ये expecting from us. जीवन है जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता And है, especially now, खास करके अभी। when you can't do anything. आप कुछ भी नहीं कर सकते, You can store up. Maybe आप जमा कर सकते हो, but you can't use.
पर आप इस्तेमाल नहीं कर That सकते। rich man said, "Oh my soul, eat, drink." हे मेरे प्राण, तू खा पी ऐश कर। See the foolishness. मूर्खता को देखो। If not, now we will dedicate our lives. अगर अब हम अपने जीवन को, अपने शरीरों को समर्पित नहीं करते, He's saying, "Oh man, he has shown you what is good." हे मनुष्य, उसने दिखाया है आपको And कि क्या what अच्छा है, does the Lord requires of you और परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए in this end time? इस अंत समय He में। wants you to be prophets. वो चाहता है कि आप नबी बने। How you can be a prophet? Where is the anointing? आप नबी कैसे बन सकते हैं? अभिषेक कहाँ है? Where is the calling? कहाँ He पर said, बुलावा "Open your है? mouth wide." उसने कहा अपने मुख को चौड़ा खोलो। This is the word which is coming to you. ये वचन है जो तेरे पास आ रहा है। And he says, "I am going to put a word और in वो your mouth. कहता है मैं उसमें वचन I am going डालूंगा, to fill a fire inside you. मैं उसके अंदर आग को डालूंगा मैं तेरे अंदर आपको डालूंगा. You will speak. और आप बोलेंगे, You will speak. आप बोलेंगे Things will take place. और चीजें होने लगेगी। You are the end time ministers. आप अंत समय के सेवक है। If God asks you anything, अगर परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है, only this. केवल यही, He has shown what is good. उसने बताया है कि क्या अच्छा है। To act justly. To और love mercy. न्याय To walk humbly न्याय से with चलो, your God. परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। And Samuel says in 15th chapter and 22nd verse, शमूएल 15 अध्याय और 22वें वचन में कहता है, does the Lord delight in offering sacrifices as much as in obedience to his voice? क्या प्रभु परमेश्वर बलि अर्पणों में, मेल अर्पणों में खुश रहता है जितना वो आपके आज्ञा पालन में खुश रहता है? उसकी आवाज को सुनो. Be his servants. उसके सेवक बनो, सेवक रहो। But calling you. वो आपको बुला रहा है। There are many who push themselves inside. बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने आप को डाल दिया, They are not working as a servants. पर वो सेवक बन के काम He नहीं knows करते। your hearts. वो आपके हृदय को जानता He है। knows the heart of David. वो दाऊद के हृदय को He knows the जानता heart of था। Moses. वो मूसा के He knows the heart of Abraham. वो अब्राहम के हृदय He को knows his जानता था। children's heart. वो अपने बच्चों के हृदय को जानता है। You need to be like Samuel. Yes, seeking his presence. अब शमूएल के जैसा बनना चाहिए, उसकी उपस्थिति को खोजने के लिए। Yes, we all need to be like that. हम सबको उसके जैसा बनना चाहिए। We all need to seek his presence. हम सबको उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। Yes, Lord, you speak. I hear thee. हाँ प्रभु, तू बोल, मैं तेरा सुन रहा हूँ। Nothing else will work. कुछ और काम नहीं होगा, Only this will work. यही काम करेगा। His glory and presence. उसकी उपस्थिति और उसका महिमा Will lift you up. आपको ऊपर उठाएगा। He said, "Come." वो कहता है आओ। How Moses went into that cliff. कैसे मूसा वहाँ गया, How Elijah went there. कैसे एलिया वहाँ गया। You don't worry for anything. आप किसी बात की चिंता You मत करो, just come. केवल आप आओ। He knows how to protect you, वो जानता है कैसे आपको सुरक्षा देनी है, how to hide you, कैसे आपको छुपा कर रखना how है, to keep you, कैसे आपको रखना है, how to smoothen your paths, कैसे आपके मार्गों को मुलायम करना how है, to straighten it. कैसे उन्हें सीधा करना है। Geologist might have told that this mountain is tough. हो सकता है जियोलॉजिस्ट उन्होंने बोला होगा कि भाई ये बहुत ही कठिन और कठोर पहाड़ है. But he calls you. पर वो आपको बुला रहा है, Come, आओ, just come. सिर्फ आप आओ, Respond to his voice, उसके आवाज को प्रत्युत्तर दो। and he will pick you up. वो आपको उठाएगा, He will strengthen you. वो आपको ताकत देगा, He will elevate you. वो आपको ऊंचा उठाएगा। There are many levels, बहुत सारे लेवल्स है, but he wants you to be there. पर वो चाहता है कि आप वहाँ रहे। There is a level of Satan. शैतान का लेवल है, In God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति में। Bible says in Psalm 97:3 भजन संहिता 97:3 में that his presence consumes his foes. उसकी उपस्थिति भस्म कर देती है शत्रुओं को। There is that level of enemy. दुश्मन की वो लेवल There है, is a level when only commoners can stay.
और वो लेवल भी है जहाँ पे सिर्फ साधारण लोग हैं, Other people. दूसरे लोग। There is a level where Israelites stay. और एक लेवल है जहाँ पे इजरायली लोग There is a हैं। level where Aaron and Miriam is there. एक लेवल है जहाँ पे हारून और मरियम है। There is a level of presence of God where Joshua and Caleb is there. और ऐसा परमेश्वर की उपस्थिति का लेवल है जहाँ पे यहोशू और कालेब है। Level where Joshua was standing. वो लेवल जहाँ पे यहोशू खड़ा था, He was not in the fire. वो आग में नहीं He था, was not in a wind. वो हवा में नहीं He was था, not in earthquake. नहीं वो भूकंप में था। God wants you to be in that level. परमेश्वर चाहता है कि आप उस लेवल में He जाए। himself will prepare a place for you. वो खुद आपके लिए जगह बनाएगा, He will hide you, protect you. वो आपको छुपा कर रखेगा और सुरक्षा देगा, He will keep you वो आपको संभालेगा in a glorious and amazing way. महिमावन तरीके से और बहुत ही अद्भुत तरीके से। Should we go to that word? क्यों ना हम उस वचन की ओर In जाए। Exodus 3rd chapter, निर्गमन 3रा अध्याय। went to that bush वो उस झाड़ी के पास गया, and the bush was burning but not consumed. झाड़ियां जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही Today थी। God was showing me आज परमेश्वर मुझे ये दिखा रहा था, that many a times in Bible, बहुतों बार बाइबल में God compared his people with trees. परमेश्वर ने अपने लोगों को पेड़ों के साथ तुलना की। This bush was burning ये झाड़ियां जल रही थी but was not consumed. पर वो भस्म नहीं हुई। You know, you all will be burning with Jesus आप सब यीशु के साथ जल रहे हैं and you will not be consumed. पर आप भस्म नहीं होंगे। When we'll read from Matthew 11:28 to 30, जब हम मत्ती 11 अध्याय 28 तक से 30 तक it पढ़ेंगे, says, "Come unto me." वो कहता है मेरे पास आओ। When yesterday I was meditating on this, जब मैं इस पर मनन कर रहा था कल, he's saying, "Come unto me." वो कहता है मेरे पास आओ। Which burden you have? कौन सा बोझा तेरे पास Still you है? have a burden of this world. फिर अब भी तेरे पास, अभी भी तुम्हारे पास क्या ये दुनिया का बोझ है? Still you are worrying with many other worries. अब भी तुम इस दुनिया के बहुत सारे वचन से भरे हुए हो। He's saying, "Come unto me. वो कहता है मेरे पास आओ, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He will bless you with his presence. वो आपको अपनी उपस्थिति से आश्रित करेगा। Say, "Take my yoke, वो कहता है मेरे जुए को उठा, which is easy. बहुत आसान है। Take my burden, which is light." मेरे इस बोझे को ले, हल्का है। He's calling you वो आपको बुला रहा है with his call उसके बुलावट से, to be his minister, उसके सेवक बनने के लिए, to be his prophets. उसके नबी रहने के लिए। He's calling you वो आपको बुला रहा है with a great call. बहुत बड़ी बुलावट से। There may be waters in front of you, like for as it was for Peter. जैसे पतरस के लिए बहुत बड़ा पानी था, वैसे हो सकता है आपके लिए भी हो। As for Moses, there was a mountain. जैसे मूसा के लिए बहुत बड़ा पहाड़ था, He's calling you. वो आपको बुला रहा है, Come, आओ come, आओ come. आओ। If you hear his voice अगर तुम उसकी आवाज को सुनते हो and open the door, और दरवाजे को खोलते हो, you will experience a miraculous presence. आप उसके अद्भुत उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। He knows your desires. वो आपकी इच्छाओं को He जानता knows है, your thoughts. वो आपके विचारों को He जानता है। calls you for one-to-one encountership. वो आपको आमना सामने करने के लिए बुला रहा है। Should we close eyes? क्यों ना हम उसकी उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करें। Now the glorious presence of Jesus will be there. अब यीशु मसीह का महिमावंत उपस्थिति होगा। He says, "I in you वो कहता है मैं तुझ में and He in me." और वो मुझ में। So awesome. कितना अद्भुत, Wonderful presence of God. परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति। He's calling you to be in that presence. वो आपको बुला रहा है उसकी उपस्थिति God में। will replace every wrong from your life with a right.
आपके जीवन में हर गलत को, गलत इंसान को, गलत बातों को सही से बदलेगा। इट्स नॉट वी, ये हम नहीं, इट्स नॉट आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा ताकत नहीं, but it's the presence of him who calls you. Come. पर ये परमेश्वर की उपस्थिति जो आपको बुला रही है, He will place the right people. वो सही लोगों को रखेगा, He'll surround you with his presence. वो आपकी उपस्थिति, वो आपको अपनी उपस्थिति में रखेगा। He says, I will position you and reposition you. वो कहता है मैं तुझे सही स्थान दूंगा और फिर स्थान दूंगा स्थान दूंगा for his glory. उसकी महिमा के You लिए। don't need to worry about anything. आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं Let करनी। Miriam rebel, let Aaron rebel. मरियम विरोध करे या हारून विरोध Let the करे, whole 11 disciples stop you. 11 शिष्य आपको क्यों न रोके। Come. आओ, Anyone may become a hurdle in your life. कोई भी आपके जीवन में रुकावट क्यों न But बने, as for you, पर आपके लिए hear his voice. उसके आवाज को He's सुनिए। calling you. Come. वो बुला रहा है आपको, आओ Come. आओ Come. आओ Come. आओ। When you go into that presence, जब आप उसकी उपस्थिति में it will जाते हैं, be entirely a different level. तो वो जो है अद्भुत अद्भुत लेवल होगा। Where I can be from your presence, Lord. कहाँ पे मैं तेरी उपस्थिति So से much प्राप्त you will be in करता his presence. हूँ। आप उसकी उपस्थिति में इतने हो जाएंगे, Undetachable presence. करने वाली कभी उपस्थिति, अलग ना होने वाली उपस्थिति खुदावन का तुम्हारे साथ रहेगी। Undetachable. कभी अलग अलग न होने आपसे कभी अलग नहीं होगा। Oh, even though I go through the valleys of shadows and death. और जबकि Amazing, amazing servant of God. You go through the valleys of shadows and death. हे प्रभु के सेवकों, आप मृत्यु के घाटी से क्यों न गुजरो। He is there. वो वहाँ पर भी है, He is God. वो परमेश्वर है, Your God. आपका He परमेश्वर, is Lord. Your Lord. वो प्रभु है, आपका प्रभु है। Just worship Him. केवल उसकी आराधना करें, Push yourself. अपने आप को उसमें डाल दे, Hear His call. उसके बुलावट को सुने, Go into His presence. उसकी उपस्थिति में जाए, Be in His presence. उसकी उपस्थिति में रहे। You will never be consumed. आप कभी भी भस्म न होंगे, But you will be in a fire. पर आप उस आग में होंगे And your God's presence will be seen through your life. और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से दिखाई देगी। Our God is so great. हमारा परमेश्वर इतना महान है। Church, हे कलीसिया, His saints, उसके संत गणों, fear not, डरो मत, worry not. चिंता मत करो। The one who has called you is faithful. जिसने आपको बुलाया वो विश्वसनीय है। He says, I know your thoughts. वो कहता है कि मैं तुम्हारे विचारों को जानता I हूँ, know your desires. मैं तुम्हारी इच्छाओं को जानता हूँ। Father, we bow down before you. पिताजी, हम तेरे सामने झुकते हैं। You are the one तू वो है who surrounds us, जो हमें घेरे हुए है, front, behind, आगे पीछे, up, ऊपर everywhere. नीचे, हर जगह। As we go and take the wings of dawn, जैसे हम जाते हैं और प्रभात के पंखों को लेते हैं, still you are there to guide us. फिर भी तू वहाँ पर है हमें हमारी अगुवाई करने के लिए। You just envelop us. तू बस हमें ढक कर रख, You are enveloping us. तू हमें ढकता है, You are everywhere. तू सब कुछ है, You are awesome God. तू अद्भुत परमेश्वर है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते प्रभु जी। What is a man that you are mindful of? मनुष्य क्या ही है कि तू उसको अपने मन में रखे। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। We plead the blood of Jesus on everyone. आज हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं, We speak healing, हम चंगाई को कहते हैं, physical, spiritual, mental. आत्मिक,
शारीरिक, मानसिक, and these children be your saints. और ये बच्चे तेरे संत गणों, These saints be your servants और ये संत गण तेरे सेवक हो, and prophets for them whom you appointed. ये नबी जिनको तूने नियुक्त किया, you will supply them. तू इन्हें देगा, You will make them to stand. तू इन्हें खड़ा करेगा, You will be their God. तू इनका परमेश्वर They are है, your people, ये तेरे लोग हैं, full of might, पूरी ताकत के साथ, full of strength, पूरे सामर्थ के साथ, full of you. पूरा तुझसे भरे हुए We are your house. हम तेरे घर हैं। We thank you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी for all your presence. तेरी सारी उपस्थिति के We लिए। bless you. हम तुझे धन्य कहते As हैं, we are here, जैसे हम यहाँ पर हैं, surrendering our life to you. अपने जीवन को समर्पित करते हुए, The good work which you have begun in us, और वो अच्छा काम जो तूने हमें शुरू किया है, in your presence in our midst, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, accomplish it until the coming of Lord Jesus Christ. इसे पूरा कर यीशु मसीह के आगमन We तक। thank you. हम धन्यवाद करते हैं, Let everyone be filled with your spirit. तेरे आत्मा से हर एक भर जाए, Let your Holy Ghost strengthen each and everyone. तेरा पवित्र आत्मा हर एक को ताकत दे, That there may be no fear of this world in कि them. इस दुनिया का कोई भी डर इनमें न रहे, No power of darkness may stand against them. कोई भी अंधकार का सामर्थ्य इनमें काम न करे, But they always be seated with Jesus in heavenly places. पर हमेशा वो यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे। Above all, और सबसे बढ़कर thank you for you with us. धन्यवाद करते कि तू हमारे साथ है। Let your peace reign. तेरी शांति राज्य करे, In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में, Amen. आमीन।